Hello and welcome to the DP World Dressing Room. I'm Papayanam. You're watching 10 Sports, our continued coverage of the ICC Champions Trophy. And it's the first big day, the first semi-final at the ICC Champions Trophy. It's a big game. Let's take a look at what we have in store for you today. Today, we're taking you to the Ring of Fire, Dubai International Stadium, where India is clashing with Australia for that spot in the final. This is the game that you're going to be watching with us here on 10 Sports, and to talk all about it and a lot of other things, I've got four fantastic gentlemen with me in the DP World dressing room. First up, an off-spin bowler, a middle-order batsman, represented India proudly, has been broadcasting around the world, and the fashion guru of our gang, Mr. Nikhil Chopra. Nikhil, good afternoon, welcome. Good afternoon, sir. Good to have you here, and love the pocket square today. Thank you. Love those colors, like always, man. Good to see you here. Next up, the legend himself, the toe-crushing, batsman terrorizing, golf swinging, and as I say, the Naulakha of the DP World dressing room, the legend himself, Mr. Waqar Younis. Waqar, good afternoon. Good afternoon, sir. How are you today? Good. How are you? Yeah, I'm great. I'm I great. know you look good. You look fresh. Thank You look crisp. Crispy crisp. Next up, cricket royalty amongst us, ladies and gentlemen. One of the finest all-rounders who grace cricket grounds around the world. Represented Pakistan proudly, captained Pakistan proudly, got us a lot of wickets and a lot of great memories. The man himself, the Sultan of Swing, Wasim Akram. Good afternoon and welcome, Wasim. Good afternoon. Assalamu alaikum. क्या हाल है सबका जी? ठीक ठाक हैं, I hope. I hope. Okay. Good to see you, Wasim. Not that I missed you because you were stuck with me and I was stuck with you. Yeah, it's getting a bit too much. I know it is. All right. And with that, finally, I have another special friend here with us, a fantastic batsman, represented India and got them a lot of great memories, especially in 1996. Please welcome Mr. Ajay Jadeja. Ajay Bhaiji, good afternoon and welcome. Adab. Sat Sri Akal. How was your trip? Yeah, I don't know when it started and when it ended. No, आप चेक करने गए थे कि इंडिया को एडवांटेज है कि नहीं, ये सब बाकी सब ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, हम चेक करने नेशनल स्टेडियम कराची गए हुए थे। इतनी मुश्किल तो नहीं थी ट्रैवल। थी एक्चुअली मेरी माता बजी हुई है। तो I can only bat in South Africa जो यहाँ आके अगले दिन वापस गए। I was wondering as well. Yeah, they've been. You would think that it is easy, but it was not. So we finished the show the other night, the last game, India-New Zealand, and then we left the studio at I think at 10:30, 11ish. And then we had, I had a wake-up alarm of 4:30. I think you too as well. 4:30 wake-up? 4:15. Yeah. So woke up at 4:30, 5 a.m. Departure to the airport, 7:30 flight to Karachi, landed, got 1 hour to kill, and then went straight to the National Stadium, Karachi, where the DP World Beyond Boundaries initiative, the first container of its kind in Pakistan, was unveiled in association with Pakistan Cricket Board. And the legend himself was there. Yeah, I was there. ये DP World का initiative सुन के दिमाग पक गया मेरा। कि और गल भी कर लो। भाई इसलिए इसकी जरूरी है because आपने कल से कम नहीं 1000 दफा कहा है ये। हाँ, तो कहना भी चाहिए ना बॉस। I know, but they're the sponsors. Limit होती है हर चीज़ दी। We got to be grateful. We got to be grateful to people who patronize. It was a great initiative. Wonderful. Giving kits to young kids. उसमें बल्ले भी थे, helmet भी थे, pads भी थे, gloves भी थे. इसी में से कोई अगला player बनेगा? That's their idea. Yeah. And with that, these three gentlemen were playing golf. So who really won the golf? Waqar bhai had a great day. Okay. He played really well. I mean, उनके जितने सारे लोग खेल रहे थे। जीता कौन है? पाजी एक पॉइंट से रह गए, मैं बहुत ही खराब खेला, बट पाजी एक पॉइंट नाल रहेगा, अदरवाइज ही वुड हैव बीन द विनर। ये भी नहीं जीते ना बेसिकली। ये मतलब क्या बताएं, वो एक पॉइंट से रह गए बस, तो जीते नहीं ना, नहीं जीते ना आप लोग। ये देखो खुश हो रहे हैं। आपको खबर भी काल किसी की हार तीनों नहीं खेले, दो ही खेल रहे थे, मैं काम कर रहे थे। I was trying to figure out what India Australia's what kind of surface How we're going to India be is going playing to win, on. How India is going to win. I can tell you what kind of surface they'll be playing. You don't have to write down. I went looking, I went to the ground, checked the grass. And, the pitch, the grass on the pitch. Yeah, if there is grass, then it's interesting. Yeah. If there's no grass, you know what it is. It's just going to turn. Absolutely. All right, folks, with that, since you brought that up, Ajay, let's start with you. Semi-final. It's India versus Australia. Head-to-head count, 84 to Australia, 57 to India, about 10 without any result. However, in Champions Trophy, Australia has only won once and India has won it twice. So this is right in front of you, head-to-head, on your screen right now. Yeah, I mean, head-to-head, 151 games, which goes back 30 years. So, you got to look at it, but, it's not the interesting one. The one is the last 5 games.
still tight. 3-2 to India. It shows you the one that really mattered is the one that hurts us still, which was that final at Ahmedabad, which we were hoping to win. So it's a game that always is going to be exciting, always going to be tough, in spite of Australia not having their, the main battery of bowlers, the main three bowlers, up to short they're short by even their batsmen. Yeah. So, but with this side, it's never about individuals. It's about, the unit that they come in with, and they find a way to win. So it's a side that you got to go out there and beat. It's not a team that gets beaten by themselves. There are a lot of teams that even if you play your average cricket, you can win because they make too many mistakes. This is a side that unless you take them head on, they don't give an inch. So it is a tight. It's a tight game. It is a semi-final. Extra pressure. Who is under more pressure today, Wasim? I suppose India, I reckon, एक तो favorites है tournament के शुरू से. I mean, Australia भी one of the favorites है. But आज के match में मेरे लिए, I think India favorite है. So they'll have a lot more pressure. It'll be a pack house. About 99% will be Indian supporters, and of course होने भी चाहिए. पूरी दुनिया में आते हैं. ऑस्ट्रेलिया को जो प्रॉब्लम होगी, जो जड्डू ने बताया, फिटनेस की. उनका जो शॉट भी इंजर है, और उसकी जगह दो ऑप्शन है उनके पास. वो यंग सेंसेशन को खिलाएंगे एज एन ओपनर, जेक फ्रेजर मैकगर्ग, और जो नया प्लेयर बुलाया उन्होंने, कूपर कॉनली, राइट, हु आल्सो बॉल्स लेफ्ट आर्म स्पिनर. और ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिनर हमने देखा है कि एक ही है मेन. सो शायद अब यहाँ पे बट ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी क्लियर. जो भी उन्होंने करना है, उन्होंने रात तक प्लान बना लिया होगा. ये नहीं कि जाके विकेट देखेंगे, 15 मिनट पहले बताएंगे. सो ईदर वे जो भी डिसीजन है वो डिसीजन करके आएंगे. सो या उनको हराना पड़ेगा इंडिया को. Well, there you have it. It's semi-final number 1, India versus Australia. Waqar, last time these two teams played off each other in a one-day was the 2023 World Cup final, and they're coming in. Also, in between, they had the Border Gavaskar Trophy, which India unfortunately lost. Does that add pressure to Rohit Sharma? I think it will play in his mind at, कहीं ना कहीं तो फुड़क रही होगी ना ये बात का ये हुआ है. But looking at the conditions, और जिस तरह की टीम खेल रही है इंडिया की, it is going to take some real doing for Australia to beat them, especially here in Dubai. The pitches are very tired. और पिछले मैच में भी देखा कि जिस तरह की पिच थी, अगर उसी तरह की पिच हुई तो I don't see Australia going through to the finals. But पिच अगर अच्छा हुआ, जहाँ पे थोड़ा फ्लैट हुआ, स्पिन का काम थोड़ा कम हुआ. I'm not saying कि स्पिन नहीं होगी, क्योंकि स्पिन तो होगा. और इंडिया ने तो 3 स्पिनर खिला नहीं है. आया क्या वो, अगर वो 4 खिलाएंगे, that means the pitch is going to be really dry. तो 3 तो उनके खेलनी है, चाहे जैसी भी पिच. निखिल, देखिए दोनों टीमें पिछले आई थिंक 8-9 महीने में इतनी क्रिकेट खेल गई है, वो प्रेशर से ज़्यादा दे नो द डीएनए ऑफ बोथ द टीम्स इनसाइड आउट. तो प्रेशर से ज़्यादा उनको पता है कि यार हमारे क्या प्लान्स है, इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के खिलाफ किस तरीके से आप चैलेंज करेंगे उनको. एंड विज़-अवी इवन फॉर ऑस्ट्रेलिया, जो कुलदीप ने भी बात कही थी ना, इस टीम के खिलाफ चैलेंजिंग क्यों होता है? बिकॉज विकेट घूम रहा हो, पाटा हो, 4 विकेटें बोर्ड पे लगी हो, ऑस्ट्रेलिया हमेशा आके निडर होके खेलता है. दैट fearless cricket. So you need to be on top of your game. ऑस्ट्रेलिया will never, कोई भी बैट्समैन जितना मर्जी घूम रहा हो, they'll never wait it out कि यार बॉल खराब मिलेगी तो मारेंगे. वो उस स्टेज पे भी अच्छी बॉल को रन्स में कन्वर्ट करता है. एंड एज अ बॉलर एंड एज अ यूनिट कि यार वी नीड टू कीप पुटिंग प्रेशर ऑन देम. इनको यहाँ से अगर उस स्टेज में पकड़ के रखा है ना, इनको यहाँ से निकलने नहीं देना. बिकॉज इफ यू गिव देम एन इंच, दे विल टेक अ माइल. Do you think have you seen these two teams playing against each other on a pitch which is sluggish, like जो हमने पिछला मैच देखा यहाँ पे इसी दुबई पिच पे, इस तरह की पिच पे पहले इन दोनों टीमों को खेलते देखा है? भाई जो हमारा अहमदाबाद वाला जो फाइनल भी था, अगर आप देखेंगे जिस तरीके से विकेट चल रहा था, और हम लोग जैसे ही वो 5-6 ओवर हुए थे, हम थोड़ा सा हैरान थे कि ये किस तरह की पिच है. तो स्पिन को स्लगिश पिच पे इंडिया को खेलने की इतनी जरूरत नहीं थी. जिस तरीके से हमारी बैटिंग चल रही है ना, और भारतीय स्पिनर्स किसी भी विकेट पे आके आपको वो इफेक्टिव डालेंगे. दे हैव द एप्टीट्यूड टू गो आउट देयर एंड produce those wicket taking deliveries. Sluggish pitch पे मुझे लगता है हमारे बैट्समैन को ज्यादा नुकसान है. All right, with that, we're going to take a break here on the DP World Dressing Room. When we come back, there's more on the other side. Stay with us. Thank you. Welcome back to the DP World Dressing Room. I'm Fakhar Alam. You're watching 10 Sports. Our continued coverage of the ICC Champions Trophy, and it is the first semi-final today from Dubai, India versus Australia.
With me in the DP World dressing room, I've got Nikhil Chopra, Waqar Yunus, Wasim Akram, and Ajay Jadeja. We were talking about which team is under more pressure here today, but let's start off. Let's take a look at how Australia fared in the league stages or the initial stages of this tournament. ये आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आ रहे हैं. This is how they went about their business. There you have it. Yeah, the Look at that. first game was brilliant. I mean, you know, run बन गए, bowlers bowling कम थी, लेकिन फिर भी चेस जिस तरह से किया ना, आसानी से उन्होंने वो कमाल का काम किया. फिर वो बारिश हो गई, नहीं तो वो मैच भी एक टक्कर का होता तो मजा आता, लेकिन अफगानिस्तान के विरुद्ध तो they just ruled. Yeah. So that's how they've gone now. Now they really haven't been tested properly, Wasim. You know, they've gotten that one game, but other than that, ऑस्ट्रेलिया भी टेस्ट नहीं हुआ. ऑब्वियसली 2 मैच बारिश हो गई, बट वो जैसे हम सब यही कह रहे हैं कि उनका पता नहीं होता. वो फेयरलेसनेस की बात की थी जब इसने निखिल ने. वो फेयरलेसनेस आती कैसे है? वो आती है द कल्चर द लिव इन, आती है वो टीम का जो कल्चर है कि कोई बात नहीं यार, यू गो प्ले योर गेम, डोंट वरी अबाउट इट, वील सपोर्ट यू, वील बैक यू, एंड दैट्स व्हाट हैज बीन हेल्पिंग. दे नॉट जस्ट क्रिकेट, इन एवरी स्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट्स. I mean, not for this game, but when he talked about fearlessness, because when we were growing up, you looked at Pakistan team and you got that feeling. You know, you always felt that with Pakistan there was a fearlessness that all of your generation played with. The culture of the team as well. Yeah. वो बड़ा मैटर करता है कि टीम के कल्चर में जब आपके प्लेयर थोड़े दबे हुए होते हैं, थोड़े कि हार ना जाएं, तो वो सब फिर जो यंग लड़का आता है ना, वो उसी रंग में बस जाता है. सो दैट्स आई थिंक ऑस्ट्रेलियन टीम में ऐसा सिस्टम कोई नहीं है. आए खेले घर गए. Yeah. You were talking about taking head on. You know, it's the most important thing. You got to take them head on. You The got team- to, because they don't play safe cricket. Yeah. You know, so they will always be on top of you. Like जैसे fields हैं, तो भी वो पीछे लास्ट में करते हैं, चढ़ा के रखते हैं. उनके बैट्समैन है, 1 आउट है, 4 आउट है. वो हमारी एक सोच होती है ना कि यार अभी हम तकलीफ में हैं, तो अब हम इसको ऐसे खेलें, अभी हम ऊपर चढ़े हुए हम ऐसे खेलें. आई थिंक उनका खेलने का तरीका बिल्कुल ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, जो अभी वसीम भाई ने भी जिक्र किया ना, फियरलेसनेस. फिर क्या है कि अगर अनलेस यू प्ले वेल और यू बीट देम, Right. ऐसा नहीं है ये हारते नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कोई भी मैच उठा के देखें, जब ये हारे हैं, जब यू विल फाइंड परफॉर्मेंसेस फ्रॉम द ऑपोजिशन साइड डूइंग समथिंग एक्सेप्शनल. यू नो, या तो कोई नई चीज आ जाए, आपका प्लेयर उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो कुछ करके दे दे, या आपके जो परफॉर्मर्स हैं वो अपनी लिमिट से आगे जाएं, क्योंकि वो इंडिविजुअल से नहीं खेलते, वो एक टीम से खेल रहे होते हैं. But you got to take them head on. And talking about head on, there's Travis Head in the middle of all of that. हमारा तो हेडेक करा हुआ है उसने. They 59 in the last game, Waqar. Just fantastic this man is. ये वेरी अनऑर्थोडॉक्स. आई मीन एक्सपेक्ट नहीं करते जो शॉट है, जिस तरीके से ये खेलता है. ये देखे ना, इवन यू नो स्टंप्स के अंदर से वही रिस्क लेने वाली बात होती है. ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंद है, घुमा दिया. He plays all shots, hardly moves in the crease, बड़ा स्टिल रहता है, हाथ ज़्यादा चलते हैं. और ना सिर्फ इस टूर्नामेंट में, बट ओवरऑल अगर उसका पूरा साल, पिछला साल 2 साल निकालेंगे ना. But look at that, what he's done against India. As Ajay Jadeja was saying, he is a bit of a headache for India. It's a nemesis for he's India. you know, he likes playing against India, but I feel कि ये जो पिच है ना, यहाँ पे अगर इस तरह खेलेगा फिर तो खैर ये ऐसा बैट्समैन है, जब इसका आप स्टांस देखते हो, सॉरी टू कट यू, अब स्टांस देखते हो, मुझे एज अ बॉलर लगता है कि ये खड़ा है ना लेफ्टी, तो लगता है कि ऑफ स्टंप पे सिर्फ मारता है, वेट कर रहा है कि इधर आए या इधर आए, मगर वो उधर भी फिर वहां से मार देता है. शुरू में सिर्फ इधर ही मारता था. हाँ. अगर आपके इसके अर्ली मैचेस देखे ना, तो ये ही वाज ऑलवेज फेवरिंग द ऑफ साइड. ये कट स्लैश जो जिसको बोलते ये अच्छी मारता था, ड्राइव के लिए देख रहा होता था. लेकिन ये अभी नई चीज़ देखी है ये पिछले 6 महीने साल से, कि जो ही आप उसके ऑफ स्टंप के अंदर भी आते हो ना, ऑफ स्टंप से अंदर भी आते हो, तो फिर ये पिकअप शॉट बहुत अच्छा खेलता है. तो वो बॉलर के लिए आपको जो ना वो मार्जिन नहीं फिर रहता, फिर जाए तो जाए कहाँ. जाए तो जाए कहाँ. वो जो नहीं हमारा पिछले मैच में जिसने आर्किटेक्ट साहब, ये आर्किटेक्ट इसकी बिल्डिंग तोड़ सकता है, ये ना बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि जो एंगल्स की बात आर्किटेक्ट का काम होता है बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग तोड़ना थोड़ी होता है भैया. ये तोड़नी पड़ेगी. ये तोड़ेंगे नहीं ना, तो ये आपकी बिल्डिंग वो बन जाएगी जिसका नाम नहीं मैं लेने चाहता, जो आपके ऊपर बनती है, क्योंकि ये हमारे को तंग कर चुका है. आप देखें, और मेन गेम्स में आके ये तंग करता है. You think that इसको you know, India can think of starting with a spinner because सबसे ज्यादा डर मैं तो वही इसीलिए इसी से ही है. उसी से बड़े शामी के साथ अगर मानो 4 खेल रहे हैं, फिर तो 100%
यू शुड डू, बिकॉज आपको पता है, आपने इसको खेलते हुए देखा है, और कोई भी खिलाड़ी किसी के अगेंस्ट अच्छा किया हुआ हो तो माइंड में रहता है, एक फील होती है कि अच्छा इसकी बॉल मैं यहाँ खेलूंगा, कुछ तो आपको नया ट्राई कर सकते हो। और अगर 4 फिर खिलाते हैं, अभी पता नहीं है कैसी विकेट है क्या है, बट अगर 4 खिला रहे हैं तो मैं तो वरुण चक्रवर्ती को ही गेंद पकड़ाऊं। All right, we've got a feature on Travis Head. Let's take a look. Travis Head there, but take a look at this is how it went down. This was the final of the World Cup 2023. Look at that scorecard and look at what Travis Head had done there. Just fantastic. I mean, Travis Head when came out to bat, he just didn't look right or left. He just started bashing straight away. Absolutely. इसका यही कहते हैं very very dangerous player. और अभी हम ऑफ इसमें डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये एक एंड स्पिन से शुरू कर दें इंडिया ऑफ स्पिन। अजी ऑफ स्पिन है नहीं, मुझे लगता है शायद अगर चांस लेना तो अक्सर, बिकॉज जो अजय भाई भी कह रहे थे ना, वरुण चक्रवर्ती नया बॉल कितना नेट में प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि वो जो मिस्ट्री स्पिनर है, जो उसकी जो एक ताकत है रिलीज वाली, Right. वो उसको सेट करने की उंगली में फंसना थोड़ा सा वो मुश्किल है, क्योंकि कड़ा सीम होता है, इलाकर पे अगर उंगली का टिप्स रहेगा तो कई बार स्किड कर जाता है, और पावर प्ले में बॉल डालना चाहिए, अगर डालेगा तो सिर्फ एक ही तरीके की बॉल डालेगा, वो जो अंदर वाली ऐसे डालता है जो लेफ्ट हैंडर को बाहर की तरफ जाएगी, उसमें कंट्रोल होगा, क्योंकि आप उसको रिस्ट को यूज कर रहे हो, उंगलियां का इस्तेमाल कम होगा। Right. और आपने बड़ी अच्छी तरह कल परसों एक्सप्लेन किया था हमें अबाउट हिज ग्रिप। सो मैं यूट्यूब पे ना कमेंट्स पढ़ रहा था, काफी सारे इंडिया से कमेंट्स थे कि आपने सारी सीक्रेट बता दी। सारी अबे secret ये बता कोई दी। बिरयानी की फैमिली रेसिपी है जो उसने बता दी है। बाकी क्या सोए हुए हैं, बाकी टीमें वो रीप्ले नहीं देखती आके, उस पे स्लो मोशन नहीं देखते आजकल सारे, कुछ भी बोलते हो। बाजी That's इसके a अंदर very ना interesting सबसे point. But let me talking about secrets. Wasim and Jaddu, I'll ask you this question. Is there ये अभी आपने स्कोर कार्ड देखा, Yeah. ट्रेविस हेड देखा, is the fact that IPL में Australian players इतना participate करते हैं कि they know the secrets, they know the secret recipe and the sauce of the Indian curry that is available today. Yeah, I mean, it has changed. Of course, it has changed over the years. Earlier, you used to have different styles of play. Yeah. You know, West Indies played in a certain way, English played in a certain way, Pakistan had their own style. But I don't think that exists anymore. You know, because world over अगर आप देखें तो ये प्लेयरों की सीक्रेट की बात की, जब आप शेयर करते हैं ड्रेसिंग रूम, आई थिंक एक दूसरे से सीखते हैं, मैं सीक्रेट नहीं मानता इसको, और ये आर्ट है ना, और ये शेयर करते हैं और अच्छी चीज़ है, इसीलिए आई थिंक गेम ग्रो इतनी फास्ट कर रही है। आप प्लेयरों की बात कर रहे हैं, कोचेस भी तो हैं अब नहीं, एक तो छोड़ोगे, इधर से उधर जो जाते हैं, अब आप उठा के देखें दुनिया के जिस टीम का, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो सीक्रेट वाली जिसकी आपने बात की, वो नेशनलिज्म है ना, वो ही बिलीव्स दैट हूएवर इट इज, नॉट राइट और रॉन्ग। नाउ इन अ नेशनलिज्म आपका लीडर तो कोई बाहर का है, यू नो, इंग्लैंड का जो कोच है वो न्यूजीलैंड का है, ठीक है, आपका फास्ट बॉलिंग कोच साउथ अफ्रीकन, और जब हम वर्ल्ड कप जीते थे तो साउथ अफ्रीकन था, यू नो, पाकिस्तान का कोच बीच में, यू नो, इंग्लिश था या साउथ अफ्रीकन था, ऑस्ट्रेलिया का कोच, यू नो, वहां पे डैनियल विटोरी बैठा था थोड़े दिन पहले। आई थिंक वो नेशनलिज्म का जो सिस्टम था वो इस स्पोर्ट से ऊपर चला गया है। I mean, some people may not like it what I'm saying, but the reality is such. सुवाए एक टीम की, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाइड टीम में नहीं, उसने डैनियल विटोरी बिठाया हुआ था, स्पिन बॉलिंग हेड कोच की बात कर रहा हूँ, हेड कोच की, जो मेनली हेड कोच की बात कर रहे हैं। चलो, मतलब हेड कोच में एक ही उन्होंने चांस लिया था मिकी आर्थर के साथ, आई थिंक वो साल भी नहीं निकाला था, नहीं, अदरवाइज वो यू नो वो कोशिश करते हैं, उनकी होती है कि उनका वो अपना, मिकी भाई ने पाकिस्तान टीम की तो कोचिंग एक्सेप्ट की थी लास्ट ईयर जब नजम सेठी साहब चेयरमैन थे, ऑनलाइन कोचिंग, Online coaching. Online getting paid to be a coach online, मतलब क्या, वो ही वुड, wherever he was in Derbyshire they coach, तो वो ऑनलाइन तो वहां से वो आप टीम में ड्रेसिंग रूम में एक स्क्रीन लगा के उससे बात करते थे, something like that, हैं? along those lines. ऐसा नहीं स्क्रीन आप Then लगा he नहीं used to सकते। get- then he used to come to big tournaments. शाम को अच्छा बुरा बताता था, ये अच्छा किया, ये बुरा किया, एंड आल्सो आई थिंक वो गाइड करता था कोचेस को कि ये करना है, ये नहीं करना, फॉर अ डे, एंड ही इज देयर वाचिंग इट ऑन टेली और व्हाटएवर लैपटॉप, तो Very काफी nice. क्रिटिसिज्म हुआ था इसको इस पे। कहते हैं रिमोट वर्किंग, वर्क फ्रॉम होम।
यू नो ये वो इसे वाला था कहते हैं एक टिकट में दो मजे, बेसिकली असल एक तीर से दो निशान। ये तो बिल्कुल अब सही वो है। खत्म हो गया है जो जिससे कोई सीक्रेट होती थी निकल जाती थी Yeah. क्योंकि ड्रेसिंग रूम में जब आईपीएल आप खेल रहे हैं तो आपने जब मैच खेलना है सामने वाली टीम के तो एक दूसरे को बताते हैं ना मैं कि यार ये इस बॉल पे हल्का है। ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स प्ले अ लॉट ऑफ आईपीएल। नहीं, but हम भी तो खेल रहे हैं। नहीं आप तो खेल ही रहे हैं ना, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस तो आपकी कंडीशंस में आके आपके प्लेयरों के साथ इतना खेल रहे हैं, उनको कुछ तो ज्यादा पता होगा दूसरों से। नहीं बिल्कुल पता है फकर भाई, और जितनी मर्जी आप किसी का हाथ भी रीड कर लेना, खेल एक चीज तो हर चीज हर मैदान में हर विकेट पे अलग होती है कि ऑफ स्पिन डाल रहा है तो कितनी टर्न करेगी, या बाहर की तरफ डाल रहे हैं कितनी टर्न करेगी, आप अंदर वाला डाल रहे हैं या कितना स्विंग होगा, वो तो चीजें चेंज होती जाएंगी ना। तो अगर से बात आई जैम्पा भाई के बारे में क्या ख्याल है आपका निखिल? देखिए जैम्पा भाई इस विकेट पे आपको तंग करेंगे क्योंकि जिस पेस पे डालता है और हल्का सा गेंद इनका बाहर की तरफ चलेगा तो वो आपको तंग करेगा, क्योंकि ये भी एक ऐसा बॉलर है कि ये अपना टप्पा छोड़ता नहीं है। अगर इसका रिदम इसने पकड़ लिया तो ये आपको तंग करेगा, इसमें कोई वो दो राय की बात है ही नहीं। एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इनके ओवर बहुत करीब से देखेगा। ये इंडिया के खिलाफ इनका रिकॉर्ड है जैम्पा का, 23 मैचेस 35 wickets, economy of 5.61. That's a very good record. That's a very good record. actually. Economy very is great. impressive. Economy is the key. key. For a wrist spinner to bowl with that pace and that control, that is remarkable what Adam Zampa does. कई दफा आपकी विकेटें बहुत होती हैं, हमें 35 विकेटें 23 मैचों, अगर आप सिर्फ विकेटें देखोगे तो कहोगे यार वाओ, लेकिन अगर आप इकोनॉमी पे नजर नहीं डालोगे और आप सोचोगे कि इकोनॉमी अगर 7 की है 7.5 की है, फिर बैट बॉलिंग है, फिर वही है कि एंड पे आके गुल्ले छोड़ के आपने विकेट्स लिए हैं। बट दीज विकेट्स आर लाइक रियली ट्रू विकेट्स जो आपने फंसा के तंग करके मजबूर करके लिए। और वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रेवर्स हेड कि अगर स्पिन से भी उसको अटैक कर सकते हैं, तो उसकी स्पिन के रन है 500 इन लास्ट 3 years, 530 रन है, 75 की एवरेज से भाई के स्पिन के खिलाफ डिफरेंट पिच की बात हो, पिच पे शायद it'll be different. Wasim, about the Australian fast bowler battery, because जो main है वो तो आई नहीं इस दफा. But look at this, Ben Washes has picked up 6 wickets in this Champions Trophy. Yeah, they're not very quick, but I think they're suitable on these kind of pitches because they all have a lot of variations. Yeah. Maybe they're not express fast bowlers. They may not 145 plus, 130, 135, but सारे ये इनकी वेरिएशन बड़ी अच्छी है। Into the stump, फिर back of a hand, देखें leg cutters, the off cutters, around the wicket, over the wicket, और I think उससे आके एंड में इनको हिट मारनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, स्पेशली उस पिचेस में जहाँ पे बॉल थोड़ा फंस रहा है, जो कि आज की पिच मेरे ख्याल में होगी। All right, with that, we're going to take a break here at the DP World dressing room. When we come back, we're closer to semi-final number 1. Stay with us. Welcome back to the DP World dressing room. I'm Fakhar Alam. You're watching 10 Sports, and we are talking about semi-final number 1. It is India versus Australia. Australia की टीम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ब्रेक से पहले. Let's now take a look at Team India, and this is how they fared during the initial stages of this tournament. ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं. So they've got 3 results, and all 3 in their favor. Look at that. Just really fantastic how they went about their business. I think the game against New Zealand was terrific. 3 विकेटें आपने पावर प्ले में गंवाने के बाद आप 250 के करीब पहुंचे, जिस गोज़ टू शो बैटिंग। उसके बाद फिर 3 नहीं 4था स्पिनर उस पर खिलाया, और जिस स्पिनर को इससे पहले वाले मैच में चांस भी नहीं मिला था वो आके 5 विकेटें लेके जाता है. So it just goes to show the bench strength and also the mindset of the Indians. Absolutely. Jaddu Baji, जी, the billion-dollar question today. कितने? Will India win the toss today? I think it's a good chance because 16 बार अगर आप हार चुके हो, 16 13 दफा, 6 तो मुझे याद आ रहे नहीं, मैं गिन रहा 13 times. अगर आप 13 बार हार चुके हैं और कोई चीज 50-50 हो तो you got to go with India winning that toss. But problem is आपको आदत नहीं रही है डिसीजन लेने की. आप सोचो जीत के तो करेंगे क्या ऐसी विकेट पे? कई चीजों की आदत होती है. I think but in spite of those tosses they've done well. और वो जो 3 मैच आपने देखा है, मैं देख रहा था कैसे हुआ. पहले मैच में आप बांग्लादेश के अगेंस्ट है, शुरू है 4 आउट हो गए थे, टाइट सिचुएशन, आपको 2 प्लेयर एंड तक ले गए. दूसरा मैच शुरू हुआ, अभी तक विराट कोहली, रिमेंबर अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट ही इज नॉट बीन इन हिज ग्रेटेस्ट फॉर्म. ही गेट्स टू गेट 100, सो दैट इज अनदर प्लस. फिर आप अगले मैच में आते हैं, आपकी जो इंजन रूम है पूरा ही आउट हो गया, उसके बावजूद आप
फिर जाके 40-50 रन से जीत गए. So I think they are in a better position in that way before they started the tournament. Any questions and doubts that you had in your minds have all been eradicated. But what matters is what you said. सिर्फ और सिर्फ रोहित का है. रोहित एक तो टॉस नहीं जीते और एक उस तरह की इनिंग अभी तक खेला नहीं है कि जो वो टूर्नामेंट में एक आधी खेलता है. Tonight might be the night. आदत ही हो गई है ना यार रोहित से. अब आप रोहित खुद भी बोलता है, अगर आप देखें रोहित एक प्लेयर है जिसने 3 डबल 100 बनाए हुए हैं और लंबे स्कोर किया करता था. बट उस जमाने में वो स्टार्ट जब करता था तो 70, 80, 90 की स्ट्राइक रेट होती होगी, फिर एक्सिलरेट करता था. अब उसने पिछले वर्ल्ड कप से जो 2023 वाला था, उसने जब से कप्तान बनाया उसने कहा यार नहीं यार मैं स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ इंडिया का खेलने का. तो उसने अपने आप पे ली है वो बात. तो अब ये बात पक्की है क्योंकि अब अपने आप पे ली है तो फिर आदमी क्या करता है, उसको पुश करता है. तो उस टाइम से लेके अभी तक आई थिंक एक ही 100 बनाया है उसने. हालांकि इतने मैचेस में वो 2, 3, 4 100 बना देता था क्योंकि एक बार स्टार्ट मिल जाए तो ये आउट होता नहीं था. बट अब क्योंकि वो ठान रखी है और सबको दिखाना है टीम को, ये नहीं बाहर वालों के लिए, कि भाई ये मोड से खेलना है, तो नेचुरली जब आप उस मोड से खेलते हैं तो सक्सेस होने के जो लंबे स्कोर्स के हैं वो चांसेस कम होते हैं. बट आई थिंक ही इज वर्कड ऑन इट के इम्पैक्ट, और इसीलिए शायद 8 नंबर पे भी बल्लेबाज आता है. और लर्निंग कर्व इससे ये है कि इस स्पोर्ट में स्पेशली लीडर तो हर जगह होता है, ज़िंदगी में काम में भी होते हैं, हर जगह होते हैं, कि लीडर का सेक्रीफाइस करना बड़ा ज़रूरी है. अब जैसे आपने कहा रोहित ने अपना स्टैट्स की नहीं सोच रहा, वो सोच रहा है कि मैंने स्टार्ट अपना तेज बनाना है, प्रेशर ताकि बॉलिंग साइड पे आ जाए, अगर मैं आउट भी हो जाए इन प्रोसेस आई विल बी ओके. सो दैट्स अ सेक्रीफाइस एंड दैट्स व्हाट टीम को बताने की भी जरूरत नहीं होती आपको कि यार तुम ये नहीं कर रहे. तुम उन्हें पता है कि मेरा जो कप्तान है, जो मेरा लीडर है, ही इज जस्ट कुर्बानी दे रहा है और वो टीम फिर उसको फॉलो करती है. ये बड़ा ज़रूरी है यंग टीम को जीतने के लिए. किसी भी कप्तान को आए कि जितना बचोगे ना आप कि मैं बच जाऊं, मैं हार से ये ना हो जाए, वो ना आ जाए, उतना ही होगा. लेकिन उससे पहले उस कप्तान को कोई 5-7 डबल सेंचुरियां करनी पैंदियां ने. अगर उसने ना की हो, देखो हमारे यहाँ है, आप नया लड़के हो जब कप्तान ने जा कुर्बानी दे, 2 मैच खराब होंगे तो तुसी उन्हें घर भेज दियोगे. दैट आल्सो प्लेज इन सर्टेन. फॉर इंस्टेंस अब कल ही की बात कर लें जब आपने डीपी वर्ल्ड की ये बियॉन्ड बाउंड्रीज इनिशिएटिव किया कराची में एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें मैंने मुझसे पूछा, क्रिकेट ऑब्वियसली क्रिकेट नेशन है, तो पूछा मैंने से क्वेश्चन कि जी क्वेश्चन वॉज के पाकिस्तान टीम का अब क्या हो जाना चाहिए. मैंने कहा पाकिस्तान टीम तो अब बाहर है, बात करते हैं उनकी जो अब सेमीफाइनल में. और दूसरा अगर आप समझते हैं पाकिस्तान टीम का, जो मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, जैसे आप लोग देख रहे हैं वैसे मैं भी न्यूज़ देख रहा हूँ कि कुछ यंग नए लड़के लाएंगे. मैंने कहा नए लड़के आते भी हैं तो फिर हमें एज अ नेशन थोड़ा सब्र दिखाना पड़ेगा. उनको अब ये नहीं चाहोगे कि 2 दिन बाद वो सारे मैच जीत जाए, सारे वर्ल्ड कप जीत के घर ले आए. सो पेशेंस भी दिखाना पड़ेगा. उस पे अब लगे हुए हैं लोग, उस पे सोशल मीडिया पे लगे हैं जी मैं हिपोक्रेट हूँ. अब मेरी तस्वीर मैंने बाबर की लगाई थी 4 साल पहले, 3 साल पहले, जब बाबर वाज स्टिल इज टॉप प्लेयर, तब इज परफॉर्मिंग रेगुलर हर फॉर्मेट में. तो कह रहा अब हिपोक्रेसी है. अब जब वो अच्छा नहीं करेगा तो उसकी कैसी तारीफ करेंगी. प्लीज ये झूठ, ये जो है ना, ये फॉल्स जो चीजें हैं उसको बस बंद करना. वो एक्चुअली वसीम, वो आपकी बात बिल्कुल सही है. बट होता क्या है हमारे यहाँ में, अगर आप ये चीज बोलेंगे तो वो उसके नेगेटिव ढूंढेंगे कि जी नहीं ये तो ऐसे होना चाहिए था. अगर आप ये बोल देते तो वो इसके नेगेटिव ढूंढ रहे होते और फिर ये कह रहे होते. यू अंडरस्टैंड? इस कल्चर से हमें निकलना पड़ेगा. वो हम बस वो एक मनफी सोच अनफॉर्चुनेटली है. बट जस्ट ऑफ टॉपिक क्विकली, इफ आई वाज टू ब्रिंग दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, हाउ लॉन्ग डू यू वेट फॉर ए क्लास एक्ट to deliver when they go out of form? Like Virat Kohli had a bad patch. Like Rohit has not gotten a century in the last 3-4 years in ODI cricket. अभी right? इंग्लैंड के अगेंस्ट 100 बना के आया. Right. अभी होम. But after a long time. After you're a long right. time, You're right. He had a big patch, you know, that he did not score any more. तो वो कितना फेज है, जिस तरह वसीम ने कहा, वो कितने अरसे तक हम वेट कर सकते हैं? कोई भी टीम या बोर्ड या नेशन कि यार ये हमारा सुपरस्टार है लेकिन ये तो 2 साल हो गए भाई, परफॉर्मेंस नहीं आई, 2.5 साल हो गए नहीं आई, 3 साल. हाउ लॉन्ग डू यू वेट? It depends, you know, how you look at that superstar. Do you look at that superstar in terms of कि हम जीत रहे हैं और वो अपना काम कर रहा है, or are you looking at only a number कि यार ये इतने रन बना रहे? वो भी तो लाइन आती है ना, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट एंड फॉरएवर. अगर कोई क्लास प्लेयर है वो तो क्लास रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं. बट होता है ना कि अगर आप जीत नहीं रहे
तो नेचुरली फिर आप जल्दी देखेंगे आगे, बट वो भी तब आप देख पाएंगे कि अगर मानो एक प्लेयर है, अभी आई गेस इन दिस केस द क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल, इट्स बाबर को यू आर रेफरिंग टू। इफ यू हैड 6 बैट्समैन होते हैं ना, 6 तो खिलाते ही है टीम, अगर बाकी 5 परफॉर्म कर रहे हैं Yes. तो आप उतना टाइम नहीं दे पाएंगे किसी भी प्लेयर को, इन दिस केस बाबर। बट अगर बाकी 5 भी कुछ नहीं कर रहे तो आप किस पे स्टिक करेंगे? आप बाबर पे ही स्टिक करेंगे ना, ऐसे ही है, ऐसे ही। या मतलब किसी भी जगह पे अगर बाकी खिलाड़ी अपना वेट पुल कर रहे हो और आपका जो मेन खिलाड़ी है वो वेट पुल नहीं कर रहा और आप हार रहे हैं, तो फिर आप उसको जल्दी छुट्टी दे देंगे। लेकिन अगर बाकी खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे और वो भी नहीं कर रहे और आप हार रहे हैं, तो अगर आप उसी को निकाल देंगे जब पता है आपको पास्ट में ये तो प्रूवन आदमी है, तो फिर क्लास प्लेयर है, तो फिर ये- आई ये थिंक इट्स एन Steven- इंडिविजुअलिस्टिक थिंग। Yeah. Steven Smith hasn't scored a century since 2022. जो रूट को कितने साल लग गए थे? Yes. उसने 5 साल बाद की है सेंचुरी जो भी की है। तो फिर Let's not forget the role of Mr. Shreyas Iyer right at the top of the bat. yeah. He's been outstanding as well. You know. इनक्रेडिबल, Yeah. जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है, आ रहा है, स्पिन को बहुत अच्छा खेल रहा है, और अभी इंडिया में डोमेस्टिक क्रिकेट खूब खेल के आया है। बहुत सारे फर्स्ट क्लास भाई, और फर्स्ट क्लास में रन बना के आया है। इंडियन टीम से ड्रॉप हो गया था, ही लॉस्ट हिज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, एंड ये चीज़ इन्होंने बोला भी है एक इंटरव्यू में, दैट ही इज़ वेरी हैप्पी डॉनिंग द इंडिया कलर्स वंस अगेन। मेहनत के साथ वापस आया, और एक चीज़ और मेहनत करके आया है। जब भी ये वनडे क्रिकेट खेलने आते थे, शॉर्ट बॉल पे सब परेशान करते थे। नाउ द गुड थिंग इज लुकिंग टू लीव इट until unless he starts feeling कि मैं जाके इस बॉल को स्टैंड में मार दूंगा। So you could see the hard work, and the hard work के साथ जिस तरीके से रन बना रहा है, very happy the way he's been able to control the innings as well. Yeah. Can All I right. just add? श्रेयस अय्यर गुड एग्जांपल बाबर की बात की ना, माइंडसेट क्या होता है। ऐसे ही है। इन्होंने स्कोर किया है ना डोमेस्टिक, तो शॉर्ट बॉल अब सबको लग रहा है ये ठीक खेल रहे हैं, आउट फिर भी शॉर्ट बॉल पे ही होके गए। जब स्कोर नहीं हो रहा और उस पे आउट होता ना, तो वो वीकनेस होती। देख So, जी, अब चेंज सब्जेक्ट, No, please क्विक go वन। ahead. अब जैसे रोहित शर्मा की हम बात कर रहे थे, उसने 3 सेंचुरी बनाई है पिछले 4 साल में, Correct. ड्यू टू हिज हाई रिस्क अप्रोच। ये जो आप जिसकी बात कर रहे थे, ड्यू के उसने कहा मैंने ये प्रेशर अपने यंग लड़कों से मैंने लेना है, आउट भी हो जाऊं इन प्रोसेस। पिछले 86 मैचों में उनकी 30 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट सिर्फ 78 का है, बट इंडिया बैक्ड हिम अप फॉर 6 years। देखिए ना, वो लीडर भी जबरदस्त है, मैच विनर, एक इनिंग खेलेगा मैच जिता देगा, ऊपर से 50 करते हैं आके 6 ओवरों में, आपका पूरा मिडिल ऑर्डर सेट है। ये एक्चुअली सॉरी वसीम, जो 86 मैचेस आप बता रहे हैं ना, ये इनके जो शुरू का पीरियड शुरू के पीरियड में आए थे, तो 86 मैचेस में इनकी ये एवरेज थी 30 in the beginning, and but India just backed him for 6 years. That whole period they said, you know, we'll stick with. उस टाइम पे खेलता भी वो पीछे था, 5-6 नंबर खेलता था, और 5-6 नंबर वाले के अगर आप नंबर ओपनर से कंपेयर करेंगे वनडे में, तो वो तो नाजायज हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सिंपल मैच है, जो ओपनर जाता है उसको 300 बॉलें हैं। भाई सारे बल्लेबाजों की बात हो रही है ना, सारे बल्लेबाजों की बात हो रही है, आपने भी तो भैया विराट कोहली को हम कैसे भूल सकते हैं? We've got a feature on विराट से लोग। दिल्ली दा मुंडा, well, but there's two दिल्ली दे। वैसे on a lighter note, आपने जितने भी उसके शॉट्स देखे हैं, या जितने भी उसकी सेंचुरियां देखी हैं, pumped up and all that, पीछे ग्रीन शर्ट ही नजर आई है नहीं? मैंने उस दिन बोला था Fair ना कि assessment. fair assessment. We specialize in bringing him back to form. Always. What is दो दिल्ली के लड़के बैठे हैं, what is दिल्ली का मुंडा? What's the attitude? I mean, दिल्ली का मुंडा स्ट्रेस फ्री, दिल वाले, हैप्पी गो लकी। okay. या सुन रहे हैं अपने अपने नहीं खुश जोन में। सुन का मतलब तो बिल्कुल ही ऐसे नाम नहीं होते जी। मतलब दिल वाले, हैप्पी गो लकी। If I'm not mistaken, Gautam Gambhir is also Dilli da Munda. Yeah. So you know, how do they do they bring that flavor into it? Two different it's tough, right? दिल्ली के, दिल्ली is the capital, Yeah. तो वहाँ पे तो एक ही बॉस रह सकता है, और इन दोनों की एक टाइम था। अब इनफैक्ट जब आईपीएल शुरू होता था, तो वो जो प्रोमोज नहीं आते, उस प्रोमो में हमेशा दिखाते थे, वसीम भाई थे उस टाइम टीम में, ये दोनों की एक बार बोलचाल हो गई, कई बार गर्मा गर्मी हो जाती है ग्राउंड में। बट द गुड थिंग इज, ये भी तो दिल्ली की खासियत है, क्योंकि जहां से भी आओ, आके जब आप बैठते हो उसमें, तो आप जब कंट्री की बात आती है, तो वो दोनों ने एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना लिए, क्योंकि अब जब एक टीम में ही रहना है, पर्सनल रिलेशन आप छोड़ देते हैं पीछे, क्योंकि एक गोल है, वहां से आगे जाना है। और इन दोनों को
आई मीन विराट कोहली को तो फिर भी आप स्माइल करते हुए देखते थे, बट गौतम को जितना अब पिछले 6 महीने में जब टीम के साथ है, द स्माइल दैट यू सी was not the case earlier. तो दिल्ली का मुंडा पता नहीं क्या होता है, बट दिल्ली ये बात पक्की है, दिल्ली कैपिटल है, वहां पे आके ना चाहे ऑपोजिशन भी हो, वहां आके एक हो जाती है। ये तो है यार जब पेट कहते हैं ना, पेट भरा हो ना, हाँ। तो सब कुछ अच्छा लगता है। आई मीन इस टाइम पे जीत रहे हो, जब जीत रहे होगे तो वो हर चीज अच्छी दिखती है। जब आप जो हार होती है ना, दैट ब्रिंग्स दैट नेगेटिविटी एंड दैट साइड ऑफ इट। I think with Kohli it's always been desire, and I told this story कि इस आदमी की अगर आप सोचे, जब यंग था, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में तो एक अलग बात है, जब ये यंग था, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा था, he lost his father at night, but he came next morning to the ground, finished his innings, won the game, and then went back home. So if you can overcome that kind of emotion, because somebody who's lost his father can understand this. Other people may not, feel that. So if you have that kind of desire to go out there and win, beyond that, that just tells you what kind of desire this man has, and he's evolved. Yeah. एक टाइम में चीकू बोलते थे, he was a nice, puffy young boy. That was one part. Then, he's a young man. He had a different kind of lifestyle. He turned it all around. He focused, and you can see the, the difference now. So he wants it so badly that, you will not be able to take it away from him. Let's put it that way. And especially when it comes to the green shirt. Will it be hard for him? I mean, he's still very strong. He's 36 now. Will it be hard for him to let go of this? एक टाइम आएगा जब आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। पता लग जाएगा। जो मेरा है, I may be totally wrong again because it's a one man's thing. I think it'll be overnight because it is all got to do with his desire. Right. And when you have such deep desire, you will not settle for less. I don't think he's one of those who's going to, linger on or carry on or feel that he's 100% or nothing. And he's shown that in his life, whether it's the dedication at that age, whether it's his love, whether it's his family, whether it's the game, it's 100% or nothing. Take a look at his Champions Trophy record, ICC Champions Trophy record. Wasim, take a look at this. जी बिल्कुल, अब इसके record देखें ना, किन नामों के साथ है, दिग्गज नामों के साथ है, बड़े नामों के साथ है. देखें, एवरेज चेक करिए, 85, ऑलमोस्ट 83 की एवरेज है. स्ट्राइक रेट तो फर्क नहीं पड़ता, 662 रन हैं. उसके बाद शिखर आता है, फिर गांगुली आता है, फिर डेमियन मार्टिन आता है, एंड ऑफ कोर्स देन जो रूट. बट यार टॉप ऑफ द लेडर, जहाँ लेके जाओ इसको टॉप ऑफ द लेडर आता है. वनडे के 100 ले लो, वनडे के रन्स ले लो. आई मीन ही हैज बीन जस्ट एक्सेप्शनल एज अ प्लेयर, एज अ लीडर, एज अ रोल मॉडल. इट्स जस्ट इससे सीखना ये है कि ये हंगर इतनी लंबी रहती कैसे है किसी इंसान में. मेरी भी आज तक हंगर नहीं मिटी कभी. मैं रोटी रह सकती है भाई, रह सकती है. बंदे में डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, ये बड़ा टिड होना चाहिए बुनियादी तौर पे. So you will always have the hunger. Interestingly, Shikhar Dhawan strike rate there 101. That was really interesting. That's very good. That's fantastic. And with that, we're going to take another break here at the DP World dressing room. When we come back, there's going to be more. And here are Wasim Akram's favorite shots. The arrival. Waqar is now going to be assessing who's got a sore. कौन सबकी चाल ही सही है यार यहाँ पे तो. We'll see you on the other side of the break. Welcome back to the DP World dressing room. The Australian contingent getting all set for the first semi-final, taking a closer look at the pitch that's going to play in today at the Dubai Ring of Fire. From here, pitch looks dry. You can see the grass पीछे जो ground में है, even जब jump करना है bowler ने popping crease से, वो भी सारी dry लग रही है. Pitch report में बताएंगे क्या pitch है, because the weather has been exceptional in Dubai. Very comfortable weather. So अब गर्मी में नहीं कह सकते, सर्दी में नहीं कह सकते. हमारी पूरी कोशिश है कि पिच तक कॉर्नर भी नजर आ जाते, आइडिया ला लिए. अगर आईसीसी वाले भी बड़े चलाक ने कॉर्नर भी नहीं दिखा रहे. वो भी बिल्कुल टाइट फ्रेम साडे को दिग्गज पिच रिपोर्टर्स हैं ने. Absolutely. We've got Josh English with us. Let's listen in. Now, there you have it. Interesting. I see a lot of mustaches in the Australian squad. Wasim, any insight on that? I'm a little curious.
What sort of question is that? But I'm curious. नहीं पता होवे। भाई सीधा कह दो ना कि मुझे रखी हुई है, आंधी आए या तूफान, मूछें खड़ी रहेंगी सीना तान। अरे वाह, मुझ नहीं थे कुछ नहीं। कुछ नहीं थे, कुछ नहीं। क्या बातें हो रही हैं। कमाल की ना। Well, और definitely. एक ही बंदा इस पैनल पे जिसने रखी थी, उससे पूछे। हाँ, you had must. ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मली नवंबर में होती है, नवंबर में वो कहते हैं मोवेंबर। Movember. हाँ, तो वो मुझे सारे रख लेते हैं। It's just some work for charity and all that. Yeah. But this time around, काफी They look सारे good. रखी हुई हैं। Yeah. Not sure. Yeah, right. Not sure. Not Chill. sure. But, well, we have a lot of differences of opinion here in the DP World dressing That's room. the and beauty that's of the it. beauty of this place. And with that, it's time to listen in to. We've got the mystery architect himself. Let's listen in. Right, there you have it. Let's just quickly see back to the Australian team's situation. They are going to look for another opener today. Yes. They have a bit of a situation. Short is Short. is short, basically. Good one. But who do they go in? Because अगर India suppose 4 spinners के साथ जाता है, do they go in with this gentleman Cooper Connolly, who's actually an all-rounder from Middle order Perth? batsman who can bowl left arm spins, and Yeah. then they have this young sensation Jake Fraser McGurk, Yeah. जो कि ऊपर टॉप के खेलता है। अब डिपेंड ऑस्ट्रेलिया क्या चाहता है। अब स्पिनर अगर आप रेगुलर स्पिन तो रेगुलर होता है, वो तो एक ही है इनके पास ज़ाम्पा, बट मैक्सवेल भी करता है, फिर ट्रेविस हेड भी 2-4 गेंदें डाल लेता है, फिर वो They can maybe bring in Tanveer Sangha as well, because that's the other two spinner leg they have. spinners against India. I wouldn't recommend. No, you wouldn't? I won't, but they can. They can. They can. उन्हों दी मर्जी है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ. Fraser McGurk, Wasim, He is the 2 danger man years too. ago, you pointed it out when he was still playing under 19, I think, for India and you, for Australia. Yeah. My apologies. And you had mentioned on the previous show, The Pavilion, that this is the guy that everybody needs to watch I mean, out for. मैंने तो चलो मेरी तो सुननी नहीं किसी ने, पर रिकी पॉन्टिंग ने जब कहा था इसके बारे में, फिर सबने सुना। साड़ी ते गल सुनना ही नहीं ना कोई। He's one of those- he's one of those- यार, before असली anybody सारे सुन रहे हैं। भाई कमाल का। But this I want to और bring चुप this on करके सुन record. रहे हैं। और चुप करके सुन रहे हैं। Okay, McGurk, was the first time that we ever heard of him was on the show, the previous version of our show, The Pavilion, where you actually spoke about him in length, and हमने फिर YouTube से उनकी एक वीडियो भी निकाली थी, and we played it on the show, and you said this young under 19 खेल रहा था उस वक्त, he is going to be a sensation. You have to keep an eye out for him. He will go up the ranks. He is a special And then- player, special talent, but he has to evolve. वो अब वनडे क्रिकेट भी जब आता है ना जड्डू, वो T20 की मोड में खेलता है, and one-day cricket is a different beast. And he's young, उसको सिखा दिया होगा कि पहले तो अपनी गेम जरूर खेल, पर हर बॉल पे नहीं मारना आंख बंद करके, जैसे वो फिल सॉल्ट मार रहा था इंग्लैंड वाला। वो तो मूड ही नहीं सी कोई। हाँ, उनका वो तो मूड ही फ्लाइट नहीं फॉर था। द He's somebody like Big Show, बिग शो की तरह। Yeah. Glenn Maxwell की तरह। Yeah. A little more consistent. मगर उसका जो That's what Ricky Ponting says. उसकी जो मूवमेंट है ना जड्डू फ्रंट फुट की, वो खड़े खड़े उसके हाथ जो आप बात करते हैं ना, हाथ चलते हैं उसके, High speed. वो फ्रंट फुट पे नहीं था, वहीं फ्रंट का था, पाँव निकाल के वहीं से बैक फुट, वहीं से फ्रंट फुट खेलता है। सो वो थोड़ी टेक्निक उसको सीख, वो आ जाएगी रेड बॉल खेल के, उसको आ जाएगी, खिलाएंगे तो पूरा ना ऑस्ट्रेलियंस उसको। आईपीएल में भी वो खेला है ना इस साल, दिल्ली से खेला 2 मैच। एक्साइटिंग प्लेयर है, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है जो आपके हाथ से गेम निकाल के ले जाए। वो ऐसा नहीं है कि आराम से खेले। Let's take a look at the Australian squad. Waqar, what do you think? Because ये अब उनको थोड़ा सा आगे पीछे करना होगा। क्या एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाएं? क्या ये कूपर कॉनली को लेकर आए, चूंकि शॉर्ट हो गए as per Wasim. So what do they do? Where look at all the available options for them. अवेलेबल ऑप्शन स्पिन में तो इनके पास अमीन संगा ही है, अगर उसको लाना चाहें 2 लेग स्पिनर। बट आई एग्री विद वसीम भाई के 2 लेग स्पिनर इवन पिछले मैच में भी देखे ना, तो रिस्ट स्पिनर को शायद उतनी हेल्प नहीं मिलती जितनी फिंगर स्पिनर को। यहाँ थोड़ा सा गेंद आपको मार के और थोड़ा तेज करना पड़ता है। तो इनके पास ट्रेविस हेड है, मैक्सवेल है, और फिर ज़ाम्पा भी ऐसा जो होता है ना लेग स्पिनर जो छोड़ के करते हैं, ऐसा नहीं, ही जस्ट फायर्स इट इन। सो आई फील के स्पिनर तो ये ऐसे ही रखेंगे। हाँ, इनका जो प्रॉब्लम जो है ना वो है पेस का। मैं समझता हूँ पेस अगर इनकी वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है कि स्टार्क, कमिंग्स, हेजलवुड, वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे जो डर सबसे ज़्यादा वो ये है कि कहीं ऊपर से अगर रोहित पड़ गया या गिल पड़ गया तो फिर इनके पास जगह नहीं होगी। हाँ, ऊपर से अगर उन्हें अच्छा स्टार्ट दे दिया तो फिर यही स्पिनर आपको लगेगा कि ये जैसे रेगुलर स्पिनर है। Handful है जी निखिल। I have a feeling अगर आप ऑस्ट्रेलियन वे जस्ट ट्राई टू थिंक, सोच के चलते हैं, वो हाफ एंड हाफ मेजर लेके नहीं चलेंगे। कॉनली को आप तब लेके जाएंगे कि भाई ये जैसा विकेट है थोड़ी स्पिन भी कर देगा, आपको चाहिए क्या?
आपको एक ओपनिंग बैट्समैन चाहिए और एक ऐसा चाहिए जो एक्साइटिंग, जो इंडिया को पहली बॉल से या पहले ओवर से प्रेशर में डाले, जो उनका देना होगा, जैक फ्रेजर मगर। अब आते हैं विकेट पे। अगर आप विकेट रीड करते हैं तो फिर कहेंगे यार हमारी बॉलिंग जो मैक्सवेल जैम्पा 2 स्पिनर हैं, अब मेरे को अगर एक और स्पिनर चाहिए, मार्नस लाबुशैन मेरे को बॉल डाल रहा है, शॉर्ट पर डाल रहा तो वो बाहर हो गया, लाबुशैन डाल देगा। अगर मेरे को स्पिनर खिलाना और मेरे को थोड़ी सी और बैटिंग आपको और मजबूत करनी है, तो तीनों लेफ्ट आर्म, मतलब तीनों मीडियम पेसर में से एक गिरा के फिर आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैटिंग मजबूत आप कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू गो इन द सेम गेम विद 3 मीडियम पेसर्स देन। Right. आई डोंट थिंक ऐसा करेंगे। They'll go with the 3 medium pacers. ऑस्ट्रेलियंस 3 पेसर तो खिलाएंगे But बाजी मुझे then नहीं you, लगता। अगर आप क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन खिला रहे हो, लेकिन- जॉश इंग्लिश से ओपन कराएंगे फिर? नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उनकी जो स्पिन में वो वाली क्वालिटी नहीं है जो इंडिया में। इंडिया अफोर्ड कर सकता है दो पेसर खिलाना। पिछले मैच में मैंने ये भी कहा था कि यार ये 2 पेसर के साथ कैसे जा सकते हो, अगर किसी को बीच में फड़गैस पड़ गई या किसी को प्रॉब्लम होगी तो फिर ओवर कैसे पूरे होंगे। बट इंडिया कैन अफोर्ड इट, क्योंकि उनके चारों बॉलर विकेट तो छोड़े, विकेट तो लेते ही लेते हैं, वो इतना आपको टाइट कर देते हैं, इतनी टाइट बॉलिंग करते हैं कि आपको रिस्क जब लेते हो तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क ये होता है कि यू लूज विकेट। You lose wicket. तो इसलिए आई थिंक ऑस्ट्रेलिया दे विल प्ले देयर वे, दे विल गो 3 पेसर्स। अगर उन्होंने लाना है कि ये एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत 2-3 ओवर का कर देगा, 4 ओवर कर देगा, दे माइट डू दैट, बट आई फील के 3 पेसर्स एंड द नॉन रेगुलर। The opening batsman All would right. be? शॉर्ट की जगह आ रहा है ना मूव स्मिथ भी कर लेता है भाई, sometimes। शॉर्ट की जगह ही आ रहा है ना इंजरी के लिए। तो शॉर्ट तो 5-6 ओवर डाल रहा था, Yeah. तो बॉलिंग तो चाहिए उनको उनके पुराने ओपन कौन करेगा? Yeah. तो यही आएगा। इंग्लिश ओपन करेगा? इंग्लिश को ही ओपन फिर लाना पड़ेगा इनको, वो बिकॉज वो डोमेस्टिक वनडे में ओपन करता है वो। So he has the experience. He has the. कैरी भी है, कैरी भी still also there. So All right, Carey folks, with that, we're going to take another break here in the DP World dressing room. When we come back, we're closer to the action and we'll find out the answers to all these questions that we are wondering about right now. And there you can see the Australian captain, Steve Smith, warming up at the Dubai Ring of Fire. We are going to be back after this break. Welcome back to the DP World dressing room. Virat Kohli on your screens and the captain himself, Rohit Sharma. These two gentlemen, the two main pillars of the Indian batting for a very, very long time. On display here today at the Dubai Ring of Fire, the first semi-final, Australia versus India. We're talking all about it. We're getting closer and closer to action time, and very soon we're going to have the pitch report also coming in for you. This then takes us to another very important question, Nikhil. We were talking about what does Australia come in with. Question is, do India go back in with 4 spinners if it's a dry pitch like the one that we saw the other day? I think if it's a dry pitch, they feel more comfortable कि मेरा जो बॉलर है, जो चौथा स्पिनर है, वो मेरे को विकेट ऑप्शन, आई थिंक जहां इंडिया खड़ा हुआ है, जिस तरीके की विकेट नजर आ रही है, एक और बॉलर के साथ जाएंगे जो मेरी एक विकेट टेकिंग ऑप्शन होगी. दे आर नॉट लुकिंग फॉर हाफ एंड हाफ की थोड़ी बैटिंग चाहिए, थोड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, if the wicket is going to suit another spinner, I think India will go in with the 4th spinner because they're looking to pick up wickets. Yeah. जी बिल्कुल है भाई, बिल्कुल. कट Yeah. में पिच रिपोर्ट आती है. इंडिया परसों मैच खेला अपना, बड़ा हाई इंटेंसिटी मैच था वो, जो भी था, और एक दिन में रिकवरी थोड़ी मुश्किल होती है. आई नो दे आर प्रोफेशनल एथलीट्स, दे आर फिजिकली वेरी फिट, बट फटीक तो आती है थोड़ी, एक दिन में रिकवरी बड़ी मुश्किल होती है 100 ओवर की. सो आज वो भी देखना पड़ेगा इंडिया को. उन्होंने भी 3-4 फ्लाइटें की थी ना ऑस्ट्रेलिया ने भी. No, but that's the point. Flight पे तो ठीक है, इतना नहीं होता, but मैच खेलने से बड़ा जूस तो निकलता है आपका, no doubt about you it. get, and it was as you said, an intense game because you were engaged throughout, because एक तो low total defend करना था, and you know you're on your toes through and through, so it does become. फ्लाइट से नहीं होता ज़्यादा. फ्लाइट से हमारा तो हुआ मेरा और वसीम का तो ठीक ठाक बादशाह बचा हुआ यही मैं पूछ रहा था. we're feeling it. Yep. मतलब वो हम जब यहाँ से यहाँ से जब गए थे तो मैं वसीम को कह रहा था, मैं यूँ लग रहा है जैसे जेट लैग हुआ है. और वो तो बूढ़े हैं, वो तो फिर बूढ़े हैं, आप तो यंगस्टर्स हैं. जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. बकार आज बड़ी प्यार से आज बड़े वही मैं देख रहा हूँ, बड़े प्यार से हो रहे थके हैं. ना, थके नहीं, अपॉर्चुनिटी है. आज फकर थका हुआ, आप भी दबा लो जरा, प्रेशर में है ना, आज दबा लो. शाम नहीं तक- तो हाथ आना नहीं इन्होंने. शाम तक सोच आके आना है तो फिर तो बस बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया वाली माइंडसेट है, जो गिरा हुआ है तो दबा के रखो. बिल्कुल ऐसे ही
you know, वो एक चीज होती है never kick a man who is already down, right? भाई इधर तो ये है कि down है, उन जिन्हें टुन्ने मारने देखो ना थर्ड हैवी डाउन हो गया. All right, 6 times that India has been in the semi-final of the Champions Trophy. That's the other team is South Africa that has been for 6 times in the Champions Trophy, the highest by any team in the world. Is this playing up on their mind right now? No? No, I don't. Nikhil is saying no. No, It's not I don't playing up. think so. I think this Indian team is beyond, those sort of pressures. Yes, they are under pressure of being the best in the world. Anything less than winning the World Cup or Champions Trophy is not accepted anymore. Yeah. It's not that. So there is a different kind, but I don't think they worry too much about being a semi-final game or, this is an opportunity to get there. So it may be complacency might set in someday, Yeah. but I doubt that they take pressure of, this is an opportunity to get to a final because they expect to win. Nothing less than winning the World Cup or Champions Trophy is accepted in India anymore. What do we make of that pitch, Wasim? Like they said, it's a dry pitch. और ठीक है हल्के से बादल ऊपर हैं बट पिच प्रेपरेशन में देखी जाए तो इट्स अ ड्राई बॉल पर टर्न तो होगा और नया गेंद हमने देखा था परसों के मैच में इंडिया न्यूजीलैंड का कि बॉल पड़ के हल्का सा नया बॉल सीम भी हुआ इसलिए हेनरी ने शुरू में आउट किए थे बट एग्जैक्टली द सेम पिच. अब बाकी अगर साइड की देखें दोनों में थोड़ा थोड़ा पानी दिया है वो थोड़ी आपको लग रही है मिडिल में जो रोल किया हुआ है लुक्स अ ड्राई पिच बट उन्होंने कहा है कि इस पे बल्ले पे गेंद भी आएगा स्विंग भी होगा और टर्न भी होगा. वही वाली है. It's still battable as per Ramiz. सारे क्वेश्चन पे ना टिक कर दो कोई ना कोई तो सही होगा. वो वाला. आई थिंक पिच रिपोर्ट के लिए भी ना जो कमेंटेटर है उसको आइडिया होना चाहिए नहीं कि इसने क्रिकेट खेली. पिच रिपोर्ट हर कोई नहीं पढ़ सकता. नहीं पढ़ सकता. वेरी रेयर कि आप बिकॉज एज अ प्लेयर जब होते हो कप्तान होते हो तो आपको जाना पड़ता है पिच पे. एज अ प्लेयर आप यू डोंट बॉदर आपको पता है कि आपने खेलना है जो भी पिच है. आई हैव टू प्ले ऑन दिस पिच. ठीक है एक आइडिया हो जाए दूर से अच्छा यार ड्राई है तो मैंने इस तरीके से अपनी बैटिंग प्लान करनी है. यूजुअली प्लेयर आम प्लेयर नहीं जाते पिच पे. As a commentator, I think you have to cover all bases. मतलब ये मैं एक चीज you don't feel like sticking your neck out. Most of the मैंने देखा जो senior commentators वो they don't like it. They just say okay इसमें बैटिंग क्योंकि बैटिंग होएगी तो सही ये तो नहीं कि बैटिंग नहीं होगी. It will be hard. वो उसके लिए स्पिन का बॉल दिया है थोड़ा बहुत नया बॉल 2 नए बॉल है थोड़ा स्विंग भी होगा और ओवरकास्ट कंडीशन है शायद थोड़ा मेरा मतलब है फंसे भी whatever. I mean these things these are normal. देखो आई थिंक पिच पिछले मैच में जो थी वो बड़ी रेयर उतनी हमने देखी है बॉल रुकते हुए फिर भी 250 तो स्कोर हो ही गया था. ठीक है So it's battable. जो अच्छी पिच होती है सपोजिटली उसमें कितना होता है 280 हो जाता है. 50 तो इट इज नॉट मच डिफरेंट एंड प्लस समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज यू read the pitch right but you don't play it right. तो फिर odd लगता है so you play a little safe. Pitch is देखो carry on. No, it's like bread making. When you बेकरी खोल जैसे घर पे ब्रेड बनाते हैं या रोटी बनाते हो तो रोटी का आटा गूंथते हो तो मम्मी को पता है ना कि या घर पे किसको पता है कि कितना पानी डालना है. तो अगर कम पानी है तो और आटा गूंथते हो तो वो क्रम्बल हो जाती है. थोड़ा सा ज्यादा पानी होता है तो वो चिकचिक हो जाता है. तो पिच जो है वो भी वैसे ही बनती है. पानी डलता है मिट्टी जुड़ती है तो प्लस माइनस जो है बहुत ज्यादा नहीं होता. ये बेहतर एग्जांपल दिया आज ये बेहतर एग्जांपल. I was going to say that in the DP World dressing room. मैं उस दिन दिया था ना तो अब पता है घर जाके रोटियां मैंने ही बनानी. बेगम नाराज है तो फिर रोटियां बनानी है तो मैं तैयारी शुरू कर दी है. बहुत बेहतर. Well done. नहीं I got to tell you one of the things that we will take away from this DP World dressing room season is your analysis and analogies about the pitch. नहीं because they were just fantastic. It is actually not rocket science. घर पे क्या होना है वो एक अलग कहानी है. ठीक है ना. नहीं बिकॉज इन्हें ये रिलेट कर पाते हैं ना लोग घर पे क्योंकि आटा सब देखा है गूंथते हैं क्या होता है ड्राई होते हैं मिट्टी की तरह. आप पानी डालते हैं उसमें उतना ही डलता है इसीलिए हमेशा कम डालते हैं पहले फिर आपको कम लगता है तो और डालते हैं. ज्यादा डाल दिया ना फिर कल बनानी पड़ेगी उस रोटी की नहीं तो फिर बिल्कुल जामनगर का शेर घर में ढेर. बेसिकली ये है सिचुएशन. I'm gonna stick my neck out a little bit. I think this will be a better pitch than the previous. Okay. All right. बस दिल कर रहे हैं. सर मुंडांदा. With that, we're going to take another break here in the DP World dressing room. When we come back, we're getting closer to the toss. Stay with us, and the Aussie boys are getting all set
Ooh, somebody is practicing wrist spin. Labuschagne. And the Aussie team in a huddle there, getting ready for this semi-final clash with India. Some live images coming out of Dubai Cricket Stadium, Dubai International Cricket Stadium. We are very close to the toss now. I'm going to start off with you, Waqar. Win the toss and do what for Australia? Australia, I think, I mean, इनकी bowling weak है. So I wouldn't suggest कि जी आप पहले अपनी weak link आगे करें. आप अपना जो stronger area है, उसको आप करिए. And then put India under pressure. Bat first, I think. और मुझे लगता है कि Australia ऐसा ही करेगी. लगता है कि ये bat पहले करेगा. And Nikhil, if India, Rohit wins the toss today, breaks that streak, what do you think he's going to do? I think he won't mind doing either. I mean, looking at the wicket conditions, जो पिछला match हुआ, पहले batting की, put more pressure because you have more bowling options. Yeah. So I don't think he would mind both. All right. Well, you have the news there. It's Australia winning the toss, selecting to bat first. And for Rohit, toss number 14 to the losses corner. The teams have come out. And there's surprises there for the Australians. Nikhil, you called this out first. Take us through. Yeah, Travis said, and Conley की बात कर रहे थे, those left arm spin as well. तो शायद अगर वो open करने आएंगे, कप्तान 3 नंबर पे Labuschagne, George Inglis, top-notch form, 100 बनाया, Alex Carey, and then Dawson Ellis, 2 medium pacer और 1 additional spinner, right arm leg spinner Sangha, and Zampa तो खेल ही रहे. So this is interesting. 2 wrist spinners for Australia. Wasim, Team India, take us through. जी बिल्कुल, रोहित, गिल एंड कोहली, 3 usual suspects. They are there. One of the 2 दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं. फिर Iyer is in good nick too. Akshar played well other day. Then Rahul is struggling a bit in the middle order, and of course Jadeja, Shami, Kuldeep, and Warren. So they are playing with 4 spinners and all-rounder. और साथ में Shami fast bowling करेगा. Okay, Waqar, what do you think is going to be a challenging total for India to chase on this pitch? 103. अगर एक बंदा करेगा तो. I think जिस तरह की पिच है, अगर उसी तरह पिछले मैच की तरह बिहेव किया तो I think once the score cross 220 the game on हो जाएगी मेरा ख्याल में. 250, 270, teams will try to get a good start. नए बॉल पे विकेट्स ना लूज करो because it's going to get a little harder in the middle overs. So अगर ऊपर से विकेट्स नहीं गिरती, then Australia in their own way they'll look to go to 300. All right, the news is Australia are batting first. They won the toss, and with that we're going to take another break in a DP World dressing room, and that's the young man coming in, 21-year-old all-rounder from Perth, Cooper Connolly, that is joining the Aussies for this semi-final. We will see you on the other side of the break. All right, welcome back to the DP World Dressing Room. I'm Fakhri Alam. You're watching 10 Sports, and the news out of the Ring of Fire in Dubai is that Australia have won the toss and elected to bat, and it's time for the expert predictions. Guys, I have an announcement to make. They're giving an opportunity to the likes of Waqar, basically. The last 3 games, these are the 2 semi-finals and the finals, जीतने वाले को 2 points मिलेंगे. So that they can make a रूल figure. बनाए जा रहे हैं. नहीं भाई ना, बड़ा डिसाइड हुआ है. See, ICC से approval लिया मैंने. हम जब नहीं उस पे जो लीड कर रहे हैं वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे हम लोग भाई. पहले बताओ ये. जीतने वाले को 2 मिलेंगे और 2 Okay, guys, बंदे we have जीत to go गए. wait. So quickly, Nikhil. मैं नहीं मानता. Nikhil, India. 4 points. India. नहीं, teams हो गई हैं. Australia. Australia. क्यों? Bayan, Susral, Australia. Ajay, India. And with that, we are going to see you on the other side of the game. Stay with us. See you on the other side of the semi-final.